Hello friends. Hello. Are you able to listen me? Hello friends. This is Dilip and welcome to Careers Online Center. So friends, due to some reasons, I did not take my class and now I'm taking your class. So friends, today we'll talk about introduction. Today we'll talk about introduction. इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, यानी आज हम लोग बात करेंगे परिचय के बारे में। परिचय आखिर इंग्लिश में परिचय हम लोग देते कैसे हैं? हमें कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, अपने आप को रखना होता है, और वहां पर समस्या आती है कि हम अपने परिचय को कैसे दें। और वहीं पे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, क्योंकि हमें वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी एक्सप्रेस आवर इंट्रोडक्शन फ्रंट ऑफ एनीवन। यानी वहां पर हमें समस्या ये आती है और हम लोग समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने कैसे रखें, कैसे रखें अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने। वहां पर हमें समस्या आती है और इसी वजह से हम अपने आप को सही वे में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो नाउ आई एम हेयर एंड आई विल टेल यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। Okay, friends. So, firstly, everyone knows that when we start our introduction, जब हम लोग अपना introduction देते हैं, firstly, I would like to say that introduction, not introduction, induction. What should you speak? Induction. Okay, not introduction. Okay, induction. So now I will talk about introduction. How you can introduce yourself. So first of all, for introducing yourself, firstly you have to speak your name. What you have to speak? Firstly you have to speak your name. सबसे पहले जब भी हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? अपना नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? अपना नाम। अपना नाम बताने का बहुत रीजन होता है। अपना नाम जब भी हम लोग बताते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? नेम। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेम। यानी जब भी हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? अपना नाम बताएंगे। नाम। To speak, to tell your name, there are so many ways, there are so many sentences in which you can express your name, you can tell your name, you can say your name. But now I will give you some examples. In that way you should speak your name. So here you can speak that, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि my name is बोल सकते हैं, my name is दिलीप कुमार, my name is दिलीप कुमार। या फिर इसके अलावा बोल सकते हैं this is दिलीप कुमार, my name is Dilip Kumar, yeah, this is Dilip Kumar, and as well as I'm Dilip Kumar. I have given you three sentences. You should speak one of them. Okay, so what should you speak? My name is Dilip Kumar, or I'm Dilip Kumar, or this is Dilip Kumar. These 10 ways you should speak your induction. You should speak your name. What should you speak? What should you speak? You should speak your name. These three ways. So first sentence is you can speak this is, and second is my name is, and third is I am. These three sentences you should speak while introducing your name. Then after that you should speak where are you from? Yani place. What should you speak? You should speak place. What should you speak? You should speak place. Means where are you from? You should speak where are you from. Means here first point is that you should speak your name, and second point is that place. From where do you belong? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ आपका? फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका नेम। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? प्लेस। फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मीन्स वेयर इज योर विलेज, वेयर आर यू फ्रॉम? आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अब उस कंडीशन में इन दैट सिचुएशन यू हैव two options there. First option is that
here place is two. First one is temporary and second one is permanent. परमानेंट यानी एक हमारा जो होता है दो एड्रेस होता है, एक होता है हमारा टेम्पोररी होता है और एक या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग टेम्पोररी एक एड्रेस होता है और सेकंड एड्रेस सेकंड जो प्लेस होता है वो हमारा क्या होता है परमानेंट होता है। ठीक है, तो परमानेंट एंड टेम्पोररी में डिफरेंस क्या है? फर्स्टली लेट मी क्लियर इट, डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी एंड परमानेंट। तो परमानेंट में क्या होता है, जहां मेरा घर है, हमेशा मेरा घर जैसे जहां पर मेरा घर है उसको बताने के लिए मैं क्या बोलूंगा, in that situation what should I speak? In that situation I should speak that I come from, what should I speak? I come from. Sorry, due to some reasons my camera is going off, so let me clear it. Thank you. So here there are two places here. First one is temporary, second one is permanent. And how should you speak about permanent या temporary? First point is that अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आपका दो ऑप्शन है, एक टेम्पोररी है और एक परमानेंट है, यानी एक वर्तमान बोल सकते हैं और एक जो हमारा होता है परमानेंट एड्रेस बोल सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट होगा आपका कि जब टेम्पोररी बोलते हैं तो टेम्पोररी बोलते समय you should speak that if I belong from Siwan and my house is in Siwan, then how should I speak? अगर मेरा घर ही सिवान है तो अगर मेरा घर ही सिवान है तो उसको मैं कैसे बताऊंगा? उस कंडीशन में देखिए, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मेरा प्रॉपर घर ही सिवान है, इफ माय परमानेंट एड्रेस इज इन सिवान, यदि मेरा परमानेंट जो एड्रेस है वो सिवान है, इन दैट सिचुएशन आई शुड स्पीक दैट आई कम फ्रॉम सिवान, आई एम फ्रॉम सिवान, आई बिलोंग टू सिवान। These are the three sentences and there are so many sentences, but I have given you only three sentences and you should speak among of it. इसमें से आपको किसी एक को बोलना चाहिए। ओके, एंड अब बात करते हैं टेम्पोररी प्लेस का। अब कहने का मतलब है कि मेरा घर सिवान है और फॉर फर्दर स्टडी आई गो टू पटना। अब क्या है कि मेरा जो घर है वो सिवान है और आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं कहाँ चले जाता हूँ? पटना चले जाता हूँ। तो व्हेन आई गो टू पटना, जब मैं पटना जाता हूँ तो वहां पर माई कोर्स ड्यूरेशन इज 2 months। अगर मेरे कोर्स ड्यूरेशन 2 month का है तो वहां पर क्या होता है कि 2 month बाद अगेन आई हैव टू कम बैक। उसके बाद क्या होता है, मुझे फिर वहां से वापस आना होता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में इन दैट सिचुएशन आई कैन नॉट स्पीक दैट आई एम फ्रॉम पटना और I come from Patna or I belong to Patna. In that situation, everyone should not speak that I am from there, I am from there. Do you know what is the reason behind it? If you are living at temporary address, temporary place, you should speak that I am living in Patna. I am living. Not I live. I am living in Patna. मैं पटना में रहता हूँ या फिर रह रहा हूँ। Whatever you want to speak, you can speak. But here, your correct answer is that if your place is temporary, you should speak that I am living in Patna. I am living in Patna. Not I come from Patna. Not I am from Patna. I belong to Patna. You should not speak like this. You should speak that I am living in Patna. What should you speak? I am living in Patna. This is the correct answer for temporary place. For temporary place, you should speak I am living in Patna. Okay? Any problem? No. I think that if you are facing any type of problem, then you can send me message in chat. I will see. But if you are watching this video on YouTube, known as KDRS Online Center, then at that situation you can comment me and you can share your problems. I will rectify your problems. I will remove your problems and I will
Do whatever I should give you for your best. So now I have told you that firstly you should speak your name as second. In second place there are two types of place, temporary and permanent. In permanent I told you that permanent जो permanent आपका एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? I come from, I am from, I belong to. These are the sentences you should speak. And then after in temporary की जब हम बात करते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय हम क्या बोलते हैं? उस समय हम बोलते हैं क्या कि आई एम लिविंग इन पटना या और आई एम लिविंग इन सिवान. Wherever you are living, you should speak that I am living in Patna, or I am living in Siwan, or I am living in Madhya Pradesh. So wherever you live, it at temporary address, temporary location, temporary place, you should speak that I am living. Okay, any problem? No. Next one is that next you should speak your father's name. What should you speak? Father's name. Next, you should speak your father's name. In father's name, you should speak that my father's name is Mr. whatever your father's name. Okay, यानी अब थर्ड पॉइंट क्या होता है? अपने पिताजी का नाम बताते हैं. अपने पिताजी का नाम बताते हैं. पिताजी का नाम में क्या बोलते हैं? My father's name is. My father's name is, या और you can speak that my father is Mr. What is your father name? You should speak that. What is your father name? You should speak after my father is or my father's name is. यानी मेरे पिताजी का नाम यह है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? My father's name is or my father's is. Then after you should speak your father's name. Okay? Any problem? No. Next. अब क्या होता है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? Here firstly name, second place, third is father's name, and then after work of your father. Fourth point is that work of your father. Work of your father. अब यहाँ पर क्या है कि आपके पापा जी करते क्या है? आपके पापा जी करते क्या हैं? अब आपने तो अपना नाम बता दिया, अपना प्लेस बता दिया, अपना फादर्स नेम बता दिया. देन आफ्टर यू शुड स्पीक दैट व्हाट डज योर फादर डू. आपके पापा जी करते क्या हैं? इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट माय फादर इज अ रबर, माय फादर लिव्स इन सऊदी अरबिया. यू कैन स्पीक. और माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर, माय फादर इज अ प्राइवेट टीचर, माय फादर इज अ शॉपकीपर. Whatever your father, you can speak. Okay. And next point is that is that point number 5 is that qualification. Qualification means your qualification. Your qualification. In your qualification you should speak that whatever you have done. जो कुछ भी आपने कर लिया है उसको बोलना है. जैसे if I talk about myself, यदि मैं खुद का बात करूं तो I have done my graduation. मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है. तो I have done my graduation right now. मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है. अब मैं क्या कर रहा हूं? तो अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूं. तो मैं क्या बोलूंगा? I have done my graduation right now. I'm learning English. I'm learning English. कहाँ? From where? I'm learning English from KDRS Online Center. I'm learning English from KDRS Online Center. You can speak. Okay. Any problem? No. I hope that you are not facing any types of problem. If you face any type of problem, kindly inform me. Okay. So here your qualification, and in your qualification you should speak that I have done whatever you have done. Firstly you should speak whatever you have done. Then after right now what are you doing? You should speak. यानी क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को यू शुड मेंशन. उस पॉइंट को हमें क्या करना होता है? मेंशन करना होता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? I hope that you are enjoying yourself and you all are
understanding whatever I am telling you. Okay, so friends, here qualification, and in qualification I am repeating again, in qualification you should speak that I have done my graduation. From wherever you want to speak you can speak. अगर मैं BU से या फिर BHU से, whatever, from where I have done my graduation, I should speak that I have done my graduation from BHU. Then after, and right now I am learning spoken English from Careers Online Center. You can speak. Then after that, what should you speak? इसके बाद क्या बोलना चाहिए आपको? It is your qualification. Then after, you should speak that what do you want to be? Sixth point is that target. Sixth point is that target. Means what do you want to be? Everyone has a target. सबके पास एक टारगेट होता है. If you don't have any target, firstly fix your target. यदि अभी तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करें? लक्ष्य बनाएं, क्योंकि बिना लक्ष्य का कुछ हासिल होने वाला नहीं है. If you take out from your home, यदि आप घर से निकलते हैं and you don't have any टारगेट और आपका लक्ष्य नहीं रहता है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं आप कहाँ कहाँ चले जाते हैं. तो इसीलिए फॉर सेविंग योर टाइम, फॉर डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव अ टारगेट. एंड इफ यू डोंट हैव एनी टारगेट, फर्स्टली फिक्स योर टारगेट. अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो वो जीवन किसी काम का नहीं है. तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, सबसे पहले आप क्या करिए? लक्ष्य बनाइए. अगर लक्ष्य नहीं हो, सबसे पहले अपना लक्ष्य फिक्स करिए कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर. आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर फॉर योर बेस्ट लाइफ. आप अपने जीवन में मतलब अपने बेस्ट लाइफ में करना क्या चाहते हैं? सबसे पहले आप क्या करिए? अपने टारगेट को फिक्स करिए. क्या करिए? अपने टारगेट को फिक्स करिए. इफ यू डोंट हैव एनी टारगेट, फर्स्टली फिक्स योर टारगेट. व्हाट डू यू वांट टू बी एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर. अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले लक्ष्य को फिक्स करिए. तो अब यहाँ पर बात करते हैं टारगेट का बात करते हैं. किसका बात करते हैं? टारगेट का. तो टारगेट का बात करते हैं मीन्स आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं. व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर टारगेट, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक. क्योंकि जब भी हम लोग इससे मिलते हैं ना तो क्या करता है? नाम पूछता है, क्वालिफिकेशन पूछता है और कहाँ से है ये पूछता है. उसके बाद तुरंत पूछता है करना फ्यूचर प्लानिंग क्या है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग. अब वहां पर हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं. वी हैव टू फेस अ वर्ड जस्ट लाइक कंफ्यूजन. व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, बिकॉज यू डोंट हैव टारगेट, यू डोंट हैव गोल. ड्यू टू दैट यू आर अनेबल टू फेस अ क्वेश्चन. And a question is that what is your target? What is your future planning? So firstly, make a plan. What do you want to be in your future? अब भविष्य में क्या करना है? सबसे पहले उसका प्लान बनाइए. नहीं बनाइएगा तो फिर वही है जैसे चल रहा है. जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है. और जिंदगी को जीने के लिए यू मस्ट हैव अ टारगेट. जिंदगी को जीने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास लक्ष्य होना चाहिए. ठीक है. तो टारगेट बोलना है. एंड इन टारगेट, अब टारगेट में क्या बोलना है? अब टारगेट में बोलना है कि मैं अगर शिक्षक बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ टीचर. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. एंड मैं पायलट बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ पायलट. अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी एन इंजीनियर. ओके. देन आफ्टर seventh point is that hobby. Seventh point is that hobby. In hobby, what should you speak? Hobby का मतलब वो होता है कि खाली समय में जैसे क्या होता है, when you are studying whatever you are doing and you are feeling bored at that time, what do you want to do for feel good? यानी क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उस समय हम मतलब बेकार महसूस करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है. इन दैट सिचुएशन विच टाइप्स ऑफ वर्क वी डू, दैट इज नॉन एज हॉबी. आप उस समय क्या करते हैं? अपने मन को बहलाने के लिए जिस काम को करते हैं ना, जिस काम को करते हैं उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हॉबी के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं? हॉबी के नाम से जानते हैं. यानी
हॉबी में क्या होता है, अब देखिए, अब हॉबी में सबका अलग अलग होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई पढ़ाई कर रहा हूँ, और क्या हो रहा है कि अब मन नहीं लग रहा है। आई एम स्टडिंग बट आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट दैट टाइम। अब उस समय मैं क्या करूंगा, अब उस समय मैं क्या करूंगा कि अब मुझे क्या, मेरी हॉबी क्या है, अब मैं सोचता हूँ कि मेरी हॉबी, चलो मान लेते हैं कि मेरी हॉबी क्या है। अब एट दैट टाइम आई स्टार्ट वॉचिंग मूवी। अब उस समय में क्या करता हूँ, मूवी देखना शुरू करता हूँ, तो दैट इज नॉन एज माई हॉबी। अब वो मेरी क्या है, मेरी हॉबी है। हॉबी क्या है, हॉबी वो है कि जब हम फ्री टाइम में, फ्री टाइम में नहीं, जब हम स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी जब हम कर रहे हैं उस समय हमारा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, उस समय मन को थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए, अपने मन को लगाने के लिए जिस काम को करते हैं ना, जिस काम को करते हैं, दैट इज नॉन एज हॉबी। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हॉबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन 7 पॉइंट आई हैव रिटन हियर हॉबी। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, हॉबी लिखा हूँ। अब हॉबी में क्या बोल, अब हॉबी में क्या होता है, किसी किसी के बहुत सारे हॉबीज होते हैं। अब किसी के बहुत सारे होते हैं, किसी का एक होता है। अब एंड यू नो दैट इफ यू आर स्पीकिंग दैट माई हॉबीज आर, अगर मेरे हॉबी एक से अधिक हैं, एट दैट टाइम यू शुड स्पीक दैट माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवी एंड प्लेइंग गेम्स। अगर मेरी हॉबी एक है तो माई हॉबी इज थिंकिंग। मान लो मेरा माई हॉबी इज थिंकिंग, मेरा हॉबी क्या है, वो थिंकिंग है। मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। जब भी मेरे मतलब मेरा मन नहीं लगता है, या फिर मैं मतलब अकेला रहता हूँ, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ। एट दैट टाइम यू कैन से दैट माई हॉबी इज थिंकिंग, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। अब बट इफ यू आर स्टूडेंट, यदि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो हॉबी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रीडिंग बुक्स होनी चाहिए, स्टडिंग, ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग्स, मतलब हमेशा नए नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और उसको क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए, इफ यू आर स्टूडेंट, यदि आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो ये आपका रहा यहाँ पर हॉबीज। लास्ट में बोलते हैं माई लुक अप इज माई पेरेंट्स। क्या बोलते हैं, माई लुक अप इज माई पेरेंट्स। एक सेंटेंस होता है लास्ट में, बोल सकते हैं माई लुक अप, माई लुक अप इज माई पेरेंट्स। अब here I have written that parents, parents and parents. What is the difference between parent and parents? Let's understand, इसको समझ लीजिए। तो पेरेंट मीन्स होता है अपने, आपके माता पिता में से कोई एक होते हैं तो उसको पेरेंट बोलते हैं, और जब दोनों होते हैं तो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो हुआ। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेम। यानी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से आई एम रिपीटिंग इट, I'm repeating it. Firstly, we have to speak our name for introducing yourself. जब भी हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, नेम बताते हैं। क्या बताते हैं, नेम। अब नेम, नेम में मैं आई हैव टोल्ड यू दैट इन नेम वी हैव 3 sentences इन दैट वेज वी कैन स्पीक आवर नेम। अब फिर मतलब मेरे पास क्या है, आप लोगों के पास 3 sentences है, और उस 3 sentences में आप अपना नेम बता सकते हैं। फर्स्ट इज दैट आई एम Dilip Kumar. I am Dilip Kumar. Second is that this is Dilip Kumar. And third is that my name is Dilip Kumar. Whatever you want to speak, you can speak among it. Okay? एंड यानी यहाँ पर क्या हुआ, आपका नेम हुआ। नेम के जस्ट बाद यहाँ पर होता है प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेस में 2 तरह के प्लेस होते हैं, एक होता है परमानेंट एड्रेस, मतलब परमानेंट प्लेस, और दूसरा होता है क्या, टेम्पोररी प्लेस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि परमानेंट के लिए कौन सा सेंटेंस होगा और टेम्पोररी के लिए कौन सा सेंटेंस होगा। एट दैट टाइम अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट प्लेस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आई कम फ्रॉम, आई बिलोंग टू एंड आई एम फ्रॉम। जस्ट लाइक इफ आई एम फ्रॉम सिवान, मैं सिवान से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फ्रॉम सिवान, आई एम फ्रॉम बिहार, या फिर आई कम फ्रॉम बिहार, या फिर आई बिलोंग टू बिहार। ठीक है, अब मैं बिहार से हूँ और कहाँ रह रहा हूँ, मध्य प्रदेश रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश रह रहा हूँ, दिल्ली रह रहा हूँ, वेर एवर आई एम लिविंग एट दैट टाइम वी हैव टू स्पीक। अब उस समय क्या होता है, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम लिविंग, लिविंग, आई एम लिविंग कहाँ, तो जहाँ रहते हैं आप, आई एम लिविंग इन पटना, आई एम लिविंग इन पटना, मैं पटना में रह रहा हूँ। यहाँ पर क्या, ये मैं पटना में रहता हूँ या फिर रह रहा हूँ,
जैसे ही लिविंग लगता है ना, आई एम लिविंग लगता है, इट शोज दैट, ये दिखाता है क्या कि इट इज नॉट योर परमानेंट लोकेशन, इट इज नॉट योर परमानेंट प्लेस, इट इज योर टेम्पोररी प्लेस। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, फादर्स नेम। उसके तुरंत बाद क्या बोलते हैं, फादर्स नेम बोलते हैं। और फादर्स नेम में क्या बोलते हैं, माय फादर, there are two ways in there are two ways I am telling you that in that ways you should speak your father's name। मैं यहाँ पर आप लोगों को दो तरीके बता रहा हूँ, इन इसी दो तरीकों से मतलब आप अपने फादर्स नेम को बता सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट माय फादर्स नेम इज, फर्स्ट पॉइंट इज दैट माय फादर्स नेम इज, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट माय फादर इज, my father is and my father's name is, my father's name is Mr. and my father name is Mr. गलती से आप लोग ये मत बोल देना माय फादर्स नेम, सॉरी, गलती से आप लोग ये मत बोल देना माय फादर्स इज। ठीक है, फादर्स का मतलब यहाँ पर प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखना। तो क्या बोलोगे, माय फादर्स इज नहीं बोलना है, माय फादर इज बोलना है। क्या बोलना है, माय फादर इज या फिर माय फादर्स नेम इज। ओके, एंड देन आफ्टर, यहाँ पर देन आफ्टर इन फोर्थ पॉइंट, वर्क ऑफ योर फादर, आपके पिताजी करते क्या है। अगर आपके पिताजी जबर हैं तो माय फादर इज जबर, माय फादर इज ऑफ जबर। अगर आपके पिताजी सऊदी या दुबई, मतलब वेयर एवर ही लिव, जहाँ कहीं भी वो रहते हैं, यू कैन स्पीक दैट माय फादर लिव्स इन सऊदी, माय फादर लिव्स इन दुबई, वेयर एवर योर फादर लिव्स, यू कैन स्पीक। Then after qualification, in qualification you have to tell your qualification। अब qualification की बात करते हैं तो उसमें आपको अपना qualification बताना पड़ता है, और आपको अपना qualification बताने में सबसे पहले क्या बोलना पड़ता है, वट एवर यू हैव डन, आपने जो कर लिया है, जो पढ़ाई आपने कर लिया है, उसी को बोलना पड़ता है, उसी को बोलना होता है। तो आपने कौन सी पढ़ाई कर ली है, तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, या फिर आपने 12th कर लिया है, या फिर आपने 10th कर लिया है, या फिर आपने MA कर लिया है, जो भी आपने कर लिया है उसको बोल देना है। उसके बाद राइट नाउ क्या बोलना है, राइट नाउ, जस्ट लाइक आई हैव डन माय ग्रेजुएशन राइट नाउ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मैं कर रहा हूँ आई एम डूइंग, या फिर आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम KDRS ऑनलाइन सेंटर। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, कहाँ सीख रहा हूँ, तो KDRS ऑनलाइन सेंटर से सीख रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम KDRS ऑनलाइन सेंटर। उसके बाद हम बात करते हैं टारगेट का, यानी एवरीवन हैज अ टारगेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट who are living, who are studying, जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उनके पास एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू डोंट हैव एनी टारगेट योर लाइफ इज लाइक अ एनिमल। अगर आपका जीवन जो है ना, आपके जीवन में एक भी टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका जीवन जो है ना एक जानवर की तरह है, एक जानवर की तरह है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दैट, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, फर्स्टली फिक्स योर टारगेट, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, एंड हाउ मच टाइम विल यू टेक फॉर बिकमिंग योर, हाउ मच टाइम विल यू टेक फॉर बिकमिंग योर फ्यूचर प्लानिंग, और हाउ मच टाइम विल यू टेक टू बिकम वट एवर यू वांट टू। अब कितना समय लगेगा, आपको फ्यूचर बनाने में कितना समय लगेगा, आप बनना क्या चाहते हो, फर्स्टली उसको फिक्स करिए, और उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स करिए, और फिक्स करके स्टडी करिए। ठीक है, दिस इज द पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड। एंड देन आफ्टर टारगेट के बाद अगर मैं बात करूं, इन टारगेट आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट व्हाट डू यू वांट टू बी, आप करना क्या चाहते हैं, थिंक and do according to your target। मीन आप करना क्या चाहते हैं सोचिए, और उसके अनुरूप कार्य करिए। आप क्या करना चाहते हैं सोचिए, और कार्य करिए। ठीक, I am pressing, that's why sorry friends। So now I was telling that in hobbies, अब इन हॉबी में क्या होता है, हॉबी की बात करें तो हॉबी हमारे बहुत होते हैं, और कम मतलब एक भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो हॉबी में वो आपका जो भी हॉबी होता है वो आप अपनी हॉबी को बोल सकते हैं, है ना। और हॉबी अगर एक तरह हो तो हॉबीज बोलेंगे, और एक होगा तो हॉबी बोलेंगे। ठीक है, अब हॉबी में क्या होता है कि जो काम आप कर रहे हैं मजा आता है, कब, जैसे करने का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं और उस समय मन नहीं लग रहा है,
तो उस समय अपने मन को बहलाने के लिए जिस काम को करते हैं, दैट इज नॉन एज और हॉबी। उस काम को, उस सिचुएशन को, जो मतलब उस परिस्थिति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हॉबी को नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एट लास्ट वी हैव टू स्पीक दैट माय लुक ऑफ इज माय पेरेंट्स। यानी अब कहने का मतलब इतना सारा काम होता ही है, इसके अलावा भी मैं क्या करता हूँ, तो मैं अपने माता पिता का देखभाल करता हूँ। क्या करता हूँ? माता पिता का देखभाल करता हूँ। ये जो है आप, मैं अपने माता पिता का देखभाल करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब मैं आप लोगों के सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन को क्या करता हूँ, प्लीज करता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, this is Dilip and I am from Shivan, Bihar, and my father's name is Mr. Ram Suraj Singh. He is a farmer, and if I talk about my education qualification, then my education qualification is concerned, I have done my graduation and right now I'm learning spoken English from Careers Online Center, and I want to be a teacher, and my hobby is thinking, as well as my lookup is my parents. That's all. Thank you so much for listening me carefully. अब यहाँ पर क्या होता है? Thank you so much for listening me carefully. अब क्या होता है? आप अपना इंजेक्शन सा मतलब अच्छा फील कराने की दिक्कत करता है, और इसी की वजह से हम ना हमें थोड़ा सा हमारी जो स्पीकिंग होता है, हमारा जो इंजेक्शन होता है, इसमें थोड़ा सा चार चांद लग जाता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें। और इसमें अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके नीचे लाल कलर के जो बटन है तो उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जितनी वीडियोज हैं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर ऑनलाइन सेंटर।